اس کہانی کے کل والے بھاگ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے کالو کوا نیلو کوی کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، اسے مہینے بھر کا راشن لا کر دیتا ہے، اس کے سارے کام کرتا ہے اور گھر میں اپنی پتنی گوری کو سوکھے دانے کھلاتا ہے۔ پھر جب کالو کوا نیلو کے لیے بیسن کے لڈو لے کر جاتا ہے تو نیلو کوی بہت خوشی خوشی وہ لڈو کھا لیتی ہے۔ میں پھر کل آؤں گی کالو جی آپ کا گھر دیکھنے، میں بھی تو دیکھوں کالو کا گھر کتنا بڑا ہے۔ گھر میں تو اس کی پتنی گوری کوی تھی، اس لیے کالو کوا ڈر جاتا ہے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، پھر کسی دن دیکھ لینا، میرا گھر کہاں، وہ تمہارا ہی ہے۔ مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میں کل ہی آؤں گی۔ تو پھر دوپہر کو آنا، میں گھر میں کچھ خاص بنواؤں گا آپ کے لیے۔ میں نے اپنی ماں سے بات کرنی تھی، نمبر ملایا تو پتا چلا میرے موبائل میں بیلنس ہی نہیں ہے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں بیلنس کی کیا چنتا، میں جاتے ہوئے پورے 500 کا کروا دوں گا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے جب سے نیلو آئی ہے کام پر کام ہی بتائے جا رہی ہے۔ سچ بتاؤں نیلو، مجھے تم سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہم شادی کر لیں؟ پہلے مجھے گوری کا کچھ کرنا ہوگا۔ گوری؟ کون گوری؟ وہ میں بھول گیا، گوری میری نوکرانی کا نام ہے۔ میں اس سے کہوں گا کہ کل آپ کے لیے سوادشٹ بھوجن بنائے۔ اب میں جاتا ہوں، مجھے اپنی نوکرانی کے لیے سموسے بھی لے کر جانے ہیں، اسے سموسے بہت پسند ہیں۔ آپ بہت اچھے کوے ہو، آپ جیسا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اپنی نوکرانی کا کتنا خیال رکھتے ہو۔ میں تو ایسا ہی ہوں، اور آپ بھی بہت سندر ہو۔ سب ایسا ہی کہتے ہیں، سب مجھے سندر کوی کہتے تھے دوسرے جنگل میں۔ کل کیا لاؤں میں آپ کے کھانے کے لیے؟ رات کو فون پر بتاؤں گی۔ میں انتظار کروں گا، آپ فون نہ کرنا، میرے پاس فری کا بیلنس ہے، میں خود ہی کال کر لوں گا۔ پھر کالو کوا وہاں سے اڑتا ہے۔ کالو جی میرا بیلنس نہ بھول جانا، میں نے ماں سے بات کرنی ہے۔ پھر کالو سیدھا طوطے کے پاس جاتا ہے اور طوطے سے نیلو کے نمبر پر 500 کا بیلنس کرواتا ہے۔ یہ نمبر تو نیلو کوی کا ہے جو نہیں آئی ہے اس جنگل میں۔ تمہیں کیسے پتا چلا مٹھو؟ وہ میرے پاس کل بیلنس کروانے آئی تھی، بہت سندر ہے وہ اور بہت تیز بھی۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہتے کسی کے بارے میں۔ پھر کالو کوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شکل دیکھی ہے اپنی، موٹی چونچ والا طوطا، بہت سندر ہے، جیسے موسی لگتی ہو اس کی۔ میں آج ہی نیلو سے کہوں گا کہ کسی بھی کام سے باہر نہ جائے۔ پھر کالو راستے سے گوری کے لیے 2 سموسے لیتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے۔ تھینک یو کالو جی سموسے لانے کے لیے، تم بہت اچھے ہو۔ بہت سوادشٹ ہیں، گرم گرم کھا لو۔ کیا آپ نے کچھ کھایا ہے؟ مجھے چھوڑو، تم کھا لو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں کھاؤں اور میرا کالو میرے منہ کی طرف دیکھے، ہم دونوں ایک ایک کھا لیتے ہیں۔ پھر گوری اور کالو دونوں ایک ایک سموسا کھا لیتے ہیں۔ رات پھر سے ہو جاتی ہے۔ لالٹن بجھا دو گوری، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں کالو جی، اتنی بھی کیا جلدی ہے سونے کی؟ میرے سر میں درد ہے۔ میں دبا دوں کیا؟ نہیں، بس لالٹن بند کر دو۔ گوری لالٹین بجھا دیتی ہے اور اپنا منہ دوسری طرف کر کے سو جاتی ہے۔
वैसे इतनी भी बुरी नहीं है गोरी, एक समोसा खाकर इतनी खुश है जैसे कोई बड़ी चीज मिल गई हो। फिर कालू आहिस्ता से गोरी की आंखों में देखता है। सो गई है। ऐसा कहते हुए कालू नीलो कव्वी का नंबर लगाता है। बैलेंस करवाने का थैंक्स। लो जी, थैंक्स कैसा। और हाँ, फिर कभी उस मोटी चोंच वाले तोते की दुकान पर ना जाना बैलेंस करवाने, वो तुम्हें बुरी नजर से देखता है। अच्छा, मुझे भी लगा था वो मेरी तरफ घूरे जा रहा था जब कल मैं बैलेंस करवाने गई थी। तुम्हें सुंदर सुंदर कह रहा था। अब आप है ना, मुझे क्या जरूरत ऐसे फजूल किस्म के पक्षियों के मुंह लगने की। एक कबूतर भी रहता है, उससे भी बात नहीं करनी, चाचा चाचा कहते हैं हम उसे। ना जी, मुझे क्या जरूरत अपने कालू को छोड़कर चाचा कबूतर से बातें करूं। कालू जी, कल आप ना मेरी तरफ आना, मैं आऊंगी आपके घर। तो फिर दोपहर को आना, दोपहर को। ऐसे कालू कौवा सारी रात नीलो कव्वी से बातें करता है। सुबह हो जाती है। अब गोरी को कैसे घर से बाहर भेजूं, क्या करूं? अगर नीलो आ गई तो गोरी को सब पता चल जाएगा। हाँ, उपाय मिल गया उपाय। गोरी उठो, अभी तक सोई हो, जल्दी उठो। कालू, क्या हुआ? क्या शोर मचा रखा है? ये लो पैसे और जाकर कुछ शॉपिंग कर लो, कई दिनों से तुम शॉपिंग को नहीं गई हो। कालू, क्या हुआ? कभी आज तक पहले तो नहीं कहा तुमने ऐसे। जब पैसे लिए लड़ लड़ कर ही लिए तुमसे। अब बातें छोड़ो, जल्दी से पैसे लो और अपने लिए शॉपिंग कराओ। थोड़ा घूम फिर लेना बाजार में, वो चिड़िया बहन बुला रही थी, उससे भी मिलाना। फिर गोरी कव्वी पैसे लेकर घर से चली जाती है। थोड़ी देर बाद नीलो कव्वी भी आ जाती है। आप तो जल्दी ही आ गई हो, अभी तो मैंने कुछ बनवाया भी नहीं है आपके खाने के लिए। मुझे थोड़ा काम बन गया था आपसे। क्या काम नीलो? मेरी सहेली की शादी है दूसरे जंगल, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। कितने कितने पैसे आपको चाहिए नीलो? आपके पास कितने हैं? बस 2 दिन बाद मैं लौटा दूंगी। तुम बताओ, जरूरत कितने पैसों से पूरी होगी? 1 लाख। रकम थोड़ी बड़ी है, डर गए ना? मैं लौटा दूंगी 2 दिन बाद। नहीं नहीं, मैं डरा तो नहीं हूँ, 1 लाख की क्या बात है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अलमारी से 1 लाख निकालकर नीलो को दे देता है। अब बैठो, चाय पीते हैं। कालू जी, थोड़ी जल्दी है। मैं चलूं आपके साथ? नहीं, आप तैयारी करो, मैं कल वापस आ जाऊंगी और फिर हमें भी तो शादी करनी है। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। किसका? तैयारी तैयारी, और क्या। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि गोरी कव्वी भी घर वापस आ जाती है, जिसे देखकर कालू बहुत डर जाता है। कालू, ये कौन है? ये मेरी नौकरानी है, गोरी है नाम इसका। अच्छा अच्छा, बताया था आपने इसका। कालू, ये कौन है? ये नीलो कवि है, नई आई है हमारे जंगल में। बहुत बड़ा घर है ना हमारा, ये हमारा घर देखने आई थी। अब मैं चलती हूँ कालू जी। फिर नीलो कव्वी वहाँ से चली जाती है। अभी शाम होने को थी जब जंगल में एक शोर मच जाता है। लुट गए, हम लुट गए, वो कवि मेरा 500 लेकर भाग गई। मेरी दुकान पर आई, पूरे 1000 का बैलेंस करवाया और कहा कि मैं पैसे घर भूल आई हूँ। यहाँ तो ताले लगे हुए हैं, ताले।
चिड़िया दौड़ी दौड़ी कालू कौवे के घर आती है। कालू कालू, वो कौवी नीलो पैसे लेकर भाग गई है, कबूतर और तोते के। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? जाकर देख लो, सब वहाँ बैठे रो रहे हैं। नीलो, वो जो सुबह हमारे घर आई थी, कालू, कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं दे दिया? ऐसा कहते हुए गोरी अलमारी खोलती है। वहाँ तो 1 रुपया भी नहीं पड़ा था। कालू, पैसे कहाँ हैं? यहाँ पैसे पड़े थे। चिड़िया, कहाँ है? सब कहाँ हैं? ऐसा कहते हुए कालू घर से भागता है। गोरी और चिड़िया भी कालू के पीछे उड़ती हैं। जब कालू नीलो के घर पहुंचता है तो वहाँ ताले लगे हुए थे। मेरा किराया भी लेकर भाग गई और जाते जाते मुझसे सोने की अंगूठी भी ले गई। मुझसे 500 लिए थे। गोरी और चिड़िया भी पहुंच जाती हैं। कालू, मेरा तो 1000 गया। कल तुम भी उसके नंबर पर बैलेंस करवाने आए थे। तुम्हें कितने का चूना लगा कर गई है वो नीलो कौवी? गोरी, हम लुट गए। वो मुझसे 1 लाख उधार ले गई है। हाय रे मेरी किस्मत, मेरा तो घर ही उजड़ गया। रुपया रुपया करके जमा किया था मैंने, और वो चुड़ैल सब लूट कर ले गई। ऐसे नीलो कौवी सबको चूना लगाकर भाग जाती है। तोता, कबूतर और बुलबुल रो रहे थे। कालू कौवे का तो दिल भी रो रहा था, क्योंकि कालू केवल लूटा ही नहीं था, वो कौवी तो उसके सपने भी तोड़ गई थी। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि नीलो कौवी कालू से कितने पैसे लेकर गई? हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अपने पति के मर जाने के बाद वो चिड़िया अपने छोटे से बेटे को साथ लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है, क्योंकि उसे सर छुपाने के लिए छत चाहिए थी। माँ के घर में उसका भाई तो उसका थोड़ा बहुत ख्याल रखता ही था, परंतु उसकी भाभी उसका वहाँ रहना पसंद ना करती। शायद कुदरत को यही स्वीकार था कि कुछ ही दिन बाद उसकी माँ बीमार हो जाती है और वो मर जाती है। माँ, आप भी मुझे छोड़कर चली गई। माँ, आपके सहारे ही तो मैं जिंदा थी, अब मेरा क्या होगा? मनहूस, चुप कर जा। पहले अपने पति को खा लिया और अब इस घर में कदम रखते ही अपनी माँ को मार दिया। रोटी तो मिल रही है तुम्हें इस घर में, और तुम क्या चाहती हो? अब छोड़ो टीना, जाने भी दो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कौवी उनके घर में आती है। आओ आओ गोरी, क्या लोगी, चाय या ठंडा? चाय ही पी लेती हूँ, मैं तो अफसोस करने आई थी, माँ जी का पता चला था। अब यहाँ बैठे बैठे हमारी तरफ क्या देखे जा रही हो? अपने बेटे को यहाँ बैठा कर जाओ और रसोई में मेरी सहेली के लिए 1 कप चाय बना कर लाओ। मैं अभी ले आती हूँ चाय। रानो चिड़िया रसोई में चाय लेने चली जाती है। अब ये यहाँ कब तक रहेगी? न जाने कब तक। जब से पति मरा है तब से यहीं रहती है। पहले तो इसकी माँ इसे खर्चा दे दिया करती थी, अब तो सब हमें ही करना पड़ेगा। सहेली, तुम अपने पति से कहो कि अपने माता पिता की जायदाद अपने नाम लगवा ले। कहीं ऐसा न हो कि बाद में ये मनहूस अपना हिस्सा मांगने लगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, और जायदाद अपने नाम लगवाने के बाद इसे यहाँ से भगा दूंगी। अब जब तक जायदाद अपने नाम नहीं लगवा लेते, इस मनहूस से थोड़ा प्यार से बात करना। ऐसी मासूम शक्ल वाली बड़ी होशियार होती हैं। भाभी, मैं 1 कप आपके लिए भी ले आई हूँ। बैठो बैठो रानो, आप भी हमारे पास ही बैठ जाओ। ये मेरी सहेली है गोरी कौवी, बता रही है कि कल ही ये अपना हिस्सा अपने भाइयों को देकर आई है। सभी बहनें अपना हिस्सा अपने भाइयों को ही देती हैं। मैंने भी ऐसा ही किया। और रानो, तुम तो रहती भी इसी घर में हो, आप भी अपने हिस्से की जायदाद अपने भाई के नाम ही लगवा दो। नहीं नहीं, हमारा कौन सा कुछ बांटा हुआ है, ये सब भाई और भाभी का ही तो है।
फिर भी रानो, मैं भी यही सोच रही हूँ कि आज तुम्हारे भाई से बात करूँगी और ये काम भी कर ही लेते हैं। तुम्हें काहे की चिंता, इतना तो ख्याल रखते हैं तुम्हारे भाई तुम्हारा। इस काम में देर न करना। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रात को जब टीना का पति घर आता है तो उसकी पत्नी टीना उससे कहती है, सुने जी, मैंने सोचा है रानो के हिस्से की जो जायदाद है वो आप अपने नाम ही लगवा लें। ऐसी भी क्या जल्दी है? वो कौन सा हमसे अपना हिस्सा मांग रही है? क्या पता कल मांग ले, और इसमें बुरा ही क्या है? मैंने भी तो अपना हिस्सा अपने भाइयों को ही दिया है। तुम्हारे पास था ही क्या, एक घर ही तो था। जो भी था, मैंने अपना हिस्सा अपने भाइयों को दे दिया। ऐसे अगले दिन रानो चिड़िया का भाई कुछ पेपर लेकर आता है और अपनी बहन से कहता है, रानो, ये हमारी जायदाद के पेपर हैं। तुम्हारी भाभी चाहती है कि मुझे सब बता दिया था भाभी ने। आप बताएं कहाँ साइन करना है? यहाँ और यहाँ। और फिर ऐसे उसकी बहन उन जायदाद के पेपर्स पर अपने साइन कर देती है और उसका भाई खुशी खुशी वो पेपर्स लेकर चला जाता है। क्या तुम्हें इस बात का कोई दुख तो नहीं है कि तुमने अपना हिस्सा अपने भाई को दे दिया? नहीं नहीं भाभी, मैं तो आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारे भाई बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बेटे को पाल रहे हैं और वो भी मुफ्त में। ये सुनकर रानो चिड़िया अपना सर झुका लेती है। कुक्कू के पापा जब बीमार हुए तो सारा पैसा उनके इलाज पर लग गया और हमने अपना घर भी बेच दिया। पता है, मुझे सब पता है। चलो, हमें भी तो घर में किसी काम वाले की जरूरत होती ही है। अच्छा है तुम घर के काम भी कर देती हो और तुम्हें रहने को जगह भी मिली हुई है। मैं थोड़ी सैर करने जा रही हूँ, मेरे आने तक घर की सफाई अच्छे से कर देना। हो सकता है शाम को मेरी एक सहेली आए। जी भाभी, मैं घर साफ कर दूंगी। टीना घूमने चली जाती है। उसकी सहेली गोरी कौवी उससे मिलती है। क्या लगवा ली सारी जायदाद तुम्हारे पति ने अपने नाम? लगवा ली है, वो तो नहीं मान रहे थे, मैंने ही समझाया उन्हें। तो फिर कोई बहाना बनाकर निकालो उस मनहूस को अपने घर से। अब तुम्हें उससे क्या मतलब? घर का काम कर देती है और 2 वक्त की रोटी खा लेती है, हमारा क्या लेती है? अभी तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो फिर क्या करोगी तुम? ये बात तो तुम्हारी ठीक है, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। कैसे निकालूं उसे अपने घर से? ये काम तो बहुत आसान है। और फिर गोरी कौवी टीना के कान में कोई बात बताती है, जिसे सुनकर टीना बहुत खुश हो जाती है। मेरी सहेली तो बहुत बड़ी शैतान है, मैं कल ही उसे घर से निकलवा दूंगी, और वो भी उसके अपने ही भाई से। दूसरे रोज टीना अपने पति के कुछ रुपए उठाती है और रानो चिड़िया के बैग में डाल देती है। उस समय रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ नदी पर गई हुई थी और जब उसका पति शाम को उससे अपने पैसे मांगता है तो वो संदूक खोलकर रोना शुरू कर देती है। पति जी, हम तो लुट गए। संदूक में तो 1 रुपया भी नहीं है, ये पैसे कहाँ गए? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने अनाज बेचकर तुम्हें 5,000 रुपए ला कर दिए थे। रानो, तुमने तो नहीं लिए यहाँ से 5,000 रुपए? नहीं भाभी, मुझे क्या पता। मैं तो अपने बेटे के लिए जूता लेने बाजार जा रही हूँ और मुझे माँ जी ने मरने से पहले 500 रुपए दिए थे, वही है मेरे पास। मुझे तो इस पर शक है, अगर आप कहें तो मैं तलाशी लूँ इस मनहूस के बैग की। जरा देखो तो सही। लाओ जरा, अपना ये बैग तो दो मुझे, शायद गलती से तुमने उठा लिए हो। ले भाभी, मैं कौन सा चोरनी हूँ। रानो की भाभी उसका बैग लेकर जैसे ही खोलती है तो रानो चिड़िया उसमें 5,000 रुपए देखकर हैरान हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने पैसे चोरी नहीं किए। अब हमें और उल्लू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने पैसे चोरी नहीं किए तो क्या खुद जल के रुपए तुम्हारे बैग में चले गए?
मुझे रानो तुमसे ये उम्मीद ना थी। माँ के मरने के बाद मैंने सोचा था कि हमेशा तुम्हें अपने घर में रखूंगा। भाई ये घर मेरा भी तो है। वो तुमने हमारे नाम लगवा दिया हुआ है और अब इस घर में चोरों के लिए जगह नहीं है। जाओ निकलो इस घर से। मैं किसी चोर को अपने घर में नहीं रख सकती। भाई मेरा विश्वास करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं चोर नहीं हूँ। मैं नहीं जानती ये रुपए मेरे बैग में कैसे आए। परंतु उसका भाई अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। सुन लिया जवाब अपने भाई का। कुछ बातें समझने की होती हैं। अगर समझदार हो तो निकल जाओ इस घर से। मैं समझ गई भाभी, मैं सब समझ गई। और भाई ये भी कि आपने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों किया है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमें इंतजार रहेगा।